Your lordships have to keep in mind when I go through the reasoning, when I go through the case law. It has retrospective effect? No. These are prospective amendments. So क्या effect आ रहा है आपका इस proviso से? It only relates to the jurisdiction vested in by exercise of the Supreme Court. And तो इसमें क्या फर्क है? जो jurisdiction होगा उसी के अंदर करेंगे ना? ये बात तो पहले the point is, what was, when I take your lordship through the case law and one of the judgments by your lordships himself, it was a very wide jurisdiction which was being exercised. After 26th amendment, there was some bifurcation. 191A was inserted specifically, which was not और 187 की jurisdiction भी curtail की है इन amendments के, क्योंकि ये clarificatory amendments नहीं है, ये substantive amendments है. No, but what is the proviso? Provided that no. पहले मैं आता हूँ 175(2) पे. 175(2) तो is very common के जो कोर्ट को jurisdiction under the law और constitution है उसके मुताबिक वो केस का फैसला करेगा. But it was not there before. It must have some effect now. You cannot say that it was there before. It doesn't make any difference now. Because this is a specific. I understand, but what you are arguing that it has some ramifications on this case. Yes. I don't think so. No. The ramifications ramification of this article on the pending review of the ramification. This case has to be seen in the context of the old 187. Yes, of course. Which did not contain these two restrictions. These amendments will not affect the Yes. So ये दो amendments आप जहन में रखें जब मैं finding और case law पढ़ूंगा. Definitely यही है. देखिए ना जो existing provisions of the constitution थी. आपने अपनी dissent में point out किया 187 was subject to 172. Now an amendment is made. नहीं उससे it was not there. पड़ा ना आप देखें मेरे ख्याल में फर्क पड़ेगा. नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे क्या फर्क पड़ा? चलें सब आर्टिकल 2 भी पढ़ लीजिए. नो कोर्ट. तो ये सुपरफ्लुअस अमेंडमेंट्स हैं सर. नहीं पढ़ तो लीजिए. इसमें बात ना करें किस पर है यानी तो हम बाद में देखेंगे. नो कोर्ट shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the constitution और by और under any law. Yes. ये इसको उन्होंने रिपीट किया यहाँ पे. ये 175(2) तो बहुत पुराना है, आज का तो है नहीं कोई. ठीक है ना? But 187 was made never subject to 175(2). It has been made subject to 175(2) for the first time. Even through the after 26. Even after this amendment, the complete power of doing complete justice is not been overruled, nor it has been amended. वो power जो आर्टिकल 187 के हैं for doing complete justice are still there. They have been made subject to 175(2), which were not there before. अगर आर्टिकल 184 में आएगा, मैं उस पे आ रहा हूँ. Subject to आर्टिकल 175(2) के अंदर the Supreme Court has power under आर्टिकल 184 and 185 and the reference का जो power है वो है, तो वो तो आज भी अपनी जगह कायम है. सर देखिए, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, इन दोनों का अफेक्ट, इस अमेंडमेंट का क्या अफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ कर्टेलिंग 187, जब मैं आपको केस लॉ पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा. आप सिर्फ जहन में रखिए इन दी आप 175(2) पढ़ लें, उसमें jurisdiction otherwise vested in the Supreme Court through Constitution. जी. तो Constitution में जो powers हैं वो आज भी जिंदा है. कैसे आप कह रहे हैं? देखिए सर, लेकिन इन वर्ड्स को कुछ तो मीनिंग देना पड़ेगा ना. 187 में इंसर्ट हुए, कुछ तो मीनिंग देना पड़ेगा. You are insisting us to curtail our power for doing complete justice. We are not. No, I'm not insisting. I'm simply saying, read this judgment and read the case law in the context of unamended 187. We do not think that our power of doing complete justice has been undone. Sir, very good. फिर कोई issue ही नहीं. Speaking for myself, I do not know whether my brothers have agreed to that or not. Our power has been curtailed. अब कहाँ से आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि हमारे इख्तियारात कम हुए? मुझे कोई ख्याल नहीं आया ये सर. मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एक अमेंडमेंट की कोई मीनिंग तो होगी ना. सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा. सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट है, उस पर वैसे नहीं अप्लाई कर सकते. जी, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस जजमेंट के हद तक अप्लाई नहीं करेंगे. अमेंडमेंट जो आई है, ये अमेंडमेंट आई है इस हद तक कि जो भी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी, that would be subject to article 175(2) और 175(2) में वही बात बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट. If your lordship is of the view no curtailment has taken place, yes. Very good. Bas. To me there is no curtailment. Bas, again you have occasion. Huh? Again you have occasion because petition
By challenging 26th Amendment is pending. Yes, yes. But the point is that if the view is that there is no change, then it doesn't matter. नहीं सदीकी साहब, इसको आइसोलेशन में नहीं, आप हमारा भी ख्याल रखते हैं ना। जी सॉरी, इसको 187 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। जी जी सर, इसको आप 175(2) के साथ पढ़ोगे। जी जी जी, तो ये अच्छा खासा करटेल किया गया व्हाइल स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ। जी जी, बल्कि ड्रास्टिक चेंजेस है इसमें, जुरिसडिक्शन इंतहाई करटेल करता है जी। तो आप हमें भी नजर रखे यार। मेरा कहना यही था कि there can be two views. One is the view of your lordships that there is no curtailment. I think I would agree with your lordship that when you make an amendment in the constitution, it cannot be treated as if it has no meaning. It is a meaning. It has the meaning, but it does not curtail our powers. Sir, please. Please, power please. The power which the Supreme Court has under the Constitution, that should still remain intact. सर मेरा ये ख्याल है कि जब भी कोई अमेंडमेंट होती है, चल आप इस तरह बता दें, आपके वो तो या तो ऐड करती है पावर को या रिस्ट्रिक्ट करती है। जो आप तस्वर कर रहे हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 184 और 185, 187 के और 186 के इख्तियार, आप बता दें इसमें क्या समझते हैं, कितने कर्टेल हुए, क्या सर? मैं उस पे आता हूँ। मैंने सिर्फ ये आपके सामने अमेंडमेंट रखी है, इस पे दो व्यूज हो सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट इसमें आता है 184, बस ये सो मोटो जुरिसडिक्शन के हवाले से लिखा गया है 175(2) में, बस। यू अंडरस्टैंड? सो मोटो जुरिसडिक्शन वो 184(3) में अमेंडमेंट जी, उसमें अमेंडमेंट जो हुई है, दे हैव जस्ट, दैट इज नॉट 187। नो, दे हैव लिंक्ड 184(3) विद 187। 187 तो अप्लाई करता है ना सर? बिल्कुल 187 है, सारा कंटेंशन ही 187 का है, उसी पे है। लेकिन अनअमेंडेड जो भी था उसकी बेसिस पे आपने आर्गू जी, एंड देयर कैन बी टू व्यूज अबाउट दैट। ठीक है ना? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वन इज द व्यू व्हिच हैज correctly been expressed by पुराना वाला पढ़िए जरा, पुराना वाला पढ़िए 187 बिफोर अमेंडमेंट। देना जरा, पढ़ ले एक मिनट जरा, देखें उसमें ऐसी क्या बात होगी जो आपको इस वाले अमेंडमेंट्स में कोई रास्ता रोक रही है या कोई कर्टेल कर रही है। फिर अमेंडमेंट की क्यों सर? भैया वो तो आप उनसे जाके पूछिए जिन्होंने की है। क्योंकि दो किस्म की अमेंडमेंट्स हो सकती, क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट एंड सब्सटेंटिव अमेंडमेंट। अगर क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट होगी तो नथिंग चेंजेस, वो सिर्फ क्लैरिफाई करती। क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सो मोटो पावर को समझते हैं कि सर 26th अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट। व्हाट वाज द अर्लियर वन? The earlier was without the bracket, the Supreme Court shall have the power to issue such directions, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, including an order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and then there was no proviso. ये अगर आप 184(3) की प्रोवाइजो के साथ पढ़ेंगे, फिर उन्होंने थोड़े से बांधने की कोशिश की है जी, हम कोशिश करेंगे वो गिरा खोल दें। सर पर वैसे ये दोनों रेलेवेंट नहीं है आपके केस में, ना अमेंडमेंट रेलेवेंट है ना 184(3) रेलेवेंट है। 187 जो ओरिजिनल टेक्स्ट थी उसका रिव्यू है, आपने उसकी रोशनी में। सर ऑफ कोर्स 187 पे तो सारा रिव्यू है। 187 अनअमेंडेड, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये अब अमेंडमेंट किए तो आपका जो डिसेंट में क्रिटिक है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज दिस अमेंडमेंट वाज नॉट देयर। दैट इज एग्जैक्टली नहीं विदाउट अमेंडमेंट वो है जो भी। अच्छा, वो विदाउट अमेंडमेंट भी वही मतलब था, अमेंडमेंट के साथ भी वही मतलब। इस प्रोवाइजो को आप नॉट अंडर रिव्यू, इस प्रोवाइजो को आप पढ़ेंगे विद द प्रोवाइजो। दिस इज एग्जैक्टली वो मैं पार्ट पढ़ता हूँ, आपने ये कहा है 187 हैज टू बी रेड विद 175(2), जो नहीं था 187 में, अब डाला गया। आप पढ़ तो लीजिए 184 हो या ना हो, लेट अस रीड दैट। नहीं 184 का प्रोवाइजो पढ़िए आप, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसकी वजह से डाला है। 184 का जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो नया प्रोवाइजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट मेक एन ऑर्डर और गिव डायरेक्शंस और मेक अ डिक्लेरेशन ऑन इट्स ओन or in the nature of suo moto exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. Now it is linked with Article 175(2) because वो jurisdiction की बात करता है, तो ये jurisdiction उन्होंने they tried to curtail the jurisdiction of the suo moto exercise, ठीक है। उसी की वजह से वो 187 में उन्होंने डाला है कि आपका जो लॉ होगा या कॉन्स्टिट्यूशन जो jurisdiction होगा उसके मुताबिक आप 187 में फैसला कर दें, but it does not curtail the power.
My lord, there are two readings. Let me explain as to why this was made. If your lordship may see CMA 2919 of 2020. आपको हम पुराने 187 के तहत डील करेंगे तो क्या जरूरत है इसके पढ़ने की? आगे चले। हाँ? आपको हम पुराने that's central to my argument. एक चीज देख लें। 187 पुराना आपको applicable है। हम उसी के तहत आपको बिल्कुल। मैं एक चीज बढ़ा दूं। CMA 2919 of 2025. हम amended 187 आप पे अप्लाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। बात बिल्कुल। Thank you sir. ज़हन में रखें, आज आपने खत्म करना है। जी बिल्कुल खत्म करूंगा। अगर आपने करे फिर हम करेंगे। सर खत्म करूंगा हर सूरत में इंशाल्लाह। मेन पे आ जाइए ना, वो रेलेवेंट नहीं है वो अमेंडमेंट, शुरू से कहा आपको। सर बिल्कुल रेलेवेंट है। अभी आप देखिएगा कितना रेलेवेंट है, अगर सीएमए देखिएगा। जस्ट टू रिफ्रेश योर लॉर्डशिप्स मेमोरी सर। 2919 जी बताइए पेज। 2919 ओके, व्हाट इज द पेज नंबर? जी सर